ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਜਮਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਰਾਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫालतू ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 228 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ NHAI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫालतू ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਜਮਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਰਾਮ ਚੌਧਰੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਸ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਫालतू ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 228 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧਾ NHAI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, सरल हो जाएगी। भाजपा तो हर बात पर अड़ी हुई है। भाजपा जिस भी बात को लेकर बात करती है वो राजनीतिक तौर पर बात करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हर चीज में राजनीति करते हैं। मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहता हूं कि जो एंटी टैक्स है वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया जितना कि शोर कर रहे हैं। मैंने कहा है कि कुछ एंटी टैक्स में भविष्य में सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। जो टैक्स लगा है वो जो NHAI के नॉर्म्स है, क्योंकि हमने क्या किया कि NHAI के फास्ट टैग के साथ उसको जोड़ा, जिसके कारण कुछ कॉस्ट पड़ी है, उसको कैसे रैशनलाइजेशन करना है भविष्य में इस बारे में सोचा जाएगा। और मेरे पंजाब के मुख्यमंत्री से बात हुई है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजा वड़िंग से बात हुई है, प्रताप सिंह बाजवा जी से भी बात हुई है। तो मैं 7 लगते एडजॉइनिंग में कैसे हम आने वाले समय में रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, वो हम उस पर विचार कर सकते हैं। सर, पंजाब कह रहा है कि वो भी हिमाचल की गाड़ियों पर टैक्स लगाए। देखो, हमने किसी की गाड़ी पर राज्य देख के टैक्स नहीं लगता है। ये 40 साल से लग रहा है। इसमें कीमत बढ़ी है तो उनको थोड़ा सा ये महसूस हुआ होगा कि कीमत बढ़ गई है। लेकिन मेरा ये विचार है कि जो पंजाब और हिमाचल के साथ जो एरिया लगते हैं उसमें टैक्स में कुछ पास के रूप में, कोई राहत के रूप में देखा जाए।
हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी की है और आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी ये मुद्दा गूंजा है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर इसका विरोध किया। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ विधायक रणधीर शर्मा बात करने के लिए मौजूद हैं। रणधीर जी, आपने आज सदन में भी मुद्दा उठाया और भाजपा लगातार इसका विरोध भी पहले से सदन के बाहर भी कर रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, तो क्या लग रहा है कि इससे कुछ फायदा हो पाएगा? और जिस बात आप लोग कर रहे हैं कि हिमाचल के लोगों को भी इससे नुकसान हो रहा है, उससे बच पाएंगे लोग? देखिए, निश्चित रूप से वर्तमान सरकार ने एंटी टैक्स की दरों को बेतहाशा बढ़ाकर हिमाचल प्रदेश की जनता पर आर्थिक बोझ लादने का काम किया है। इसलिए शुरू से ही हम इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये फरवरी महीने में इन्होंने दरें बढ़ा दी थी, उसके टेंडर भी हो गए हैं। तो विधानसभा के अंदर महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण था, उसमें भी हमने इस मुद्दे को उठाया था। विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया था और आज एक प्रश्न के माध्यम से भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश हमने की है, क्योंकि इसके कारण हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो ओनर है गाड़ियों के, उनको तो फर्क पड़ेगा ही, उसके अलावा आम आदमी को भी उससे जो है फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स में लोगों का सामान आता है। कमर्शियल व्हीकल्स की जो दरें हैं उनमें 2.5 गुना से भी ज़्यादा वृद्धि हुई है। उसके कारण जब ट्रक वाला, यूटिलिटी वाला 2.5 गुना ज़्यादा एंटी टैक्स देकर आएगा, तो वो मार जो है आम आदमी पर पड़ेगी, महंगाई बढ़ जाएगी। ट्रक में सीमेंट आएगा तो सीमेंट महंगा हो जाएगा, राशन आएगा तो राशन महंगा हो जाएगा। उसी तरह टैक्सीज में लोग आएंगे तो वो किराया लोगों को देना पड़ेगा। समय दिया आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा के साथ एक खास बातचीत आपने सुनी और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रुख है कि एंट्री टैक्स में जो बढ़ोतरी की गई है वो गलत है और सरकार को इसे जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। सीनियर कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश डोभाल, जी मीडिया, शिमला। बढ़ाए गए एंटी टैक्स के मुद्दे को लेकर राकेश जम्वाल, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे साथ हैं। जम्वाल जी, आपने भी सदन में एंटी टैक्स की जो बढ़ोतरी उसका मुद्दा उठाया है। क्या लग रहा है कि सरकार वापस हटेगी? क्योंकि मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि इतने बड़ी जो है वो बढ़ोतरी नहीं है जितना बड़ा हंगामा किया जा रहा है। आज इसी मुद्दे को लेकर मेरा प्रश्न था, जिसका जवाब मुख्यमंत्री जी ने दिया, लेकिन जवाब मुख्यमंत्री जी ने गोलमोल दिया। 70 रुपए से छोटी गाड़ियों पर टैक्स, एंट्री टैक्स जो आपने 170 रुपए कर दिया और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मामूली सा टैक्स हमने बढ़ाया है। 70 रुपए से 170 को मामूली बता रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी तो हिमाचल की गाड़ियों से भी एंट्री टैक्स लिया जाता था। हिमाचल का व्यक्ति हिमाचल आ रहा है, उसको अपने घर आने के लिए एंट्री टैक्स देना पड़ता था। पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार के समय में उस टैक्स को हटा दिया गया था, लेकिन सरकार ने अपनी आय बढ़ाने के लिए अब ये नया फार्मूला अपनाया और बहुत सी दरें जो हैं 2 गुना 3 गुना जो है इसमें बढ़ा दी हैं। इसी को लेकर मैंने प्रश्न भी किया और उसको लेकर पंजाब सरकार ने भी कहा है कि हिमाचल की गाड़ियां जब पंजाब आएगी तो स्वाभाविक तौर पर हम भी उनसे एंट्री टैक्स लेंगे। आप देख रहे हैं कि सरकार ने उत्तर में कहा है कि इसका कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा, टूरिज्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब आपने सीधा एक प्राइवेट गाड़ी का 70 से 170 रुपए कर दिया तो निश्चित तौर पर उसका असर जो है प्रदेश की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी पड़ेगा, उसका असर टूरिज्म के ऊपर भी पड़ेगा। और उत्तर में कहा गया है कि हमने पर्यटकों की सुविधा के लिए और सड़कों के रखरखाव के लिए ये टैक्स लिया जाता है। कीरतपुर से लेकर मनाली तक NHAI उस सड़क को बनाती है, उसकी देखभाल करती है और क्या सुविधा जो है पर्यटकों को आज हिमाचल की सरकार दे रही है। हमने ये प्रश्न हमारा प्रदेश की सरकार से है। तो टैक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ और जो ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, फालतू ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ स्पष्ट कर दिता गया है। दस दिए कि वादे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बहुत हो हल्ला जो है विधान सभा की कार्रवाई के दौरान देखने को मिलिया। तो मुख्यमंत्री सुक्खू ने जवाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ कि एंट्री टैक्स लगाना कोई नवा नहीं है, तो इस मुद्दे ते गैर वाजिब ਰੋਲਾ पाया जा रहा है। उन्होंने भी कहा कि भविष्य ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ है। दस कि हिमाचल सरकार के वालों बाहरी सूबे तो आने वाली गड्डियां ते लगा के वधे रहे एंट्री टैक्स का विवाद जो है लगातार भखदा जा रहा है और पंजाब और हिमाचल के सरहदी पिंडों के लोग भी हालांकि इसका विरोध कर रहे हैं। पंजाब हिमाचल की सरहद से पिंड ढेरिया के वड्डा इकट्ठ भी देखने को मिला। वख-वख जथेबंदियां, ट्रांसपोर्टर पहुंचे, स्थानक लोग पहुंचे और हिमाचल की विधान सभा
ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇहद ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਜੋ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ। सीएम सुक्खू ने कई गल्लां नूं स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि फालतू का रौला पाया जा रहा विरोधी धिरां दे वल्लों और उन्होंने कहा कि टैक्स दे विच जो वाधा है वो कोई खास वाधा उस दे विच कीता नहीं गया है। इस दे नाल ही सीएम मान ने भी स्पष्ट किया कि हिमाचल दी जिहड़ियां छोटियां टैक्सियां ने उन्हां दे कोलों कोई फीस नहीं वसूली जाएगी। नवीआं दरां दे नाल सूबे नूं तकरीबन 228 करोड़ रुपए दा सालाना मालिया पैदा होने की उम्मीद है। तो कौमी राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI दे नियम ने जो कि सेंटर के अंडर काम करती है उसे दे नियम ने और फास्टैग का इस्तेमाल किया गया है तो कोई सूबे के नागरिकों से वाधू बोझ नहीं पाया जा रहा। फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए भी कोई गलत जो स्पष्ट होंगी है। हिमाचल के निजी वाहन 70 की थां 170 दिनों के उत्ते हुण टैक्स लगा दिता गया। कमर्शल गड्डियां जो पंजाब की गल की जाए तो कमर्शल गड्डियां ते टैक्स लाने की तैयारी की जा रही है। हिमाचल के 12 सीटर वाहन 10 की थां 170 रुपए है। सुप्रीम कोर्ट हुण पंजाब सरकार भी जाने की पूरी तैयारी कर रही है। पंजाब सरकार वाले पासे देखो जरा निजी वाहनों से कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेशनल हाईवे से किवें टैक्स लग सकता है पंजाब सरकार के वल्लों सवाल खड़े किए गए हैं। इस दे नाल ही पंजाब सरकार ने हिमाचल प्रदेश के कारोबार नूं वड्डी ढाह लगण दी भी गल आखी है। एक पासे हिमाचल है दूजे पासे पंजाब सरकार है। एक पासे हिमाचल की सरकार के वलों स्पष्ट किया जा रहा है कि कोई वाधू टैक्स नहीं लगाया गया है और गैर वाजिब रौला पाया जा रहा है और दूसरे पासे पंजाब सरकार के वलों कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं और पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रही है। निजी वाहनों से टैक्स नहीं लगेगा पंजाब सरकार के वलों स्पष्ट कर दिया गया है। नेशनल हाईवे से किवें टैक्स लग सकता है ये भी सवाल खड़ा किया है। ट्रैक्टर चालकों के लिए 10 की थां 100 रुपए है। हिमाचल वाले पासे देखो जरा जो ट्रैक्टर चालक ने तो इस अलावा निजी जो वाहन है 70 की थां 170 रुपए उन्होंने को वसूले जाएंगे। निजी वाहन 70 तो 170 रुपए वसूले जाएंगे और 12 सीटर वाले जो वाहन है वो 10 की थां 170 रुपए उत्थे वसूले जाएंगे। तो इसनूं मामूली वाधा दस रहे हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री और इधर दूजे पासे पंजाब वाले पासे जो है डटवा विरोध इन चीज़ों का किया जा रहा है क्योंकि आवाजाही जो है पंजाब वाले पासों बहुत ज़्यादा होंगी है। हिमाचल वाले पासे तो हिमाचल तो भी हेठा आउंदे ने जे इहदे विच कारोबार नूं वड्डे पद्धर ते ढाह लगण की संभावना पंजाब सरकार के वल्लों ज़ाहिर की गई।